Welcome to Biokey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. Hello everyone and welcome back to my channel Biokey for NEET where we are preparing for NEET 2025 biology paper. हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जिनको देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं और वो सारे वीडियोस देखें. These questions and these videos will help you boost your marks in biology paper of NEET 2025 examination. हमारा आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम. So before we start this video, please share it with your friends, subscribe the channel and stay with me till the end of the video. Question number 1. Which of the following is a feature of Rhodophyceae? Flagellated gametes, reserve food in starch, chlorophyll B as pigment, Floridian starch as reserve. Rhodophyceae क्या हो गया? ये जो हमारे रेड एल्गी होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? They comes under Rhodophyceae. तो Rhodophyceae का फीचर कौन सा है? So Rhodophyceae store their food as a Floridian starch. It is a very unique carbohydrate and it is unique for Rhodophyceae. Answer is Floridian starch. है ना? जो ये Rhodophyceae हैं, they lack flagellated stages and they thrive in marine environment. इसलिए जो फ्लोरिडियन स्टार्च का प्रेजेंस है, ये हॉलमार्क है रेड एल्गीज का. In algae, zygote develops into a new organism without meiosis in Haplontic life cycle, diplontic life cycle, Haplo-diplontic life cycle या Bryophytes life cycle. In algae, zygote develops into a new organism without meiosis in. So answer is A, Haplontic life cycle. है ना? In Haplontic life cycle, the zygote undergoes meiosis directly to form haploid spores. ये सीधे haploid spores बनाती हैं. ठीक है? और जो डिप्लॉयड स्टेज होता है ये सिर्फ जाइगोट में होता है. तो इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, क्लेमाइडो मोनास, है ना? नेक्स्ट, which of these plants lack true roots, stems and leaves? Pteridophytes, Bryophytes, Gymnosperms Angiosperms. Which of these plants lack true roots, stems and leaves? Answer is Bryophytes. Answer is Bryophytes. They lack true roots, stems and leaves. इनके पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है? जैसे rhizoids, colloids, phylloids, है ना? ये होता है ब्रायोफाइट्स के पास. They are considered non-vascular and need water for their reproduction. So जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये थैलॉइड होते हैं. They are thalloid and they are also primitive. They don't have roots, stems and leaves. Next, protonema stage is found in mosses, liverworts, ferns, algae. Answer is mosses. है ना? Mosses have a unique protonemal stage. It is a creeping green thread-like gametophyte. This is creeping green and thread-like
गैमेटोफाइट। ठीक है। स्पोर जर्मिनेशन के बाद जो पहला स्टेज आता है वो है प्रोटोनिमा का स्टेज है। सो प्रोटोनिमा जो होता है ये मॉजेस का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, विच ग्रुप shows alternation of generations with dominant gametophyte? Angiosperm, Gymnosperms, Bryophytes, Pteridophytes. Which group shows alternation of generations with dominant gametophyte? तो देखिए इसमें जो ब्रायोफाइट्स होता है ना, यहां पे क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन ब्रायोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स आर डोमिनेंट, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है ना। दिस ऑल्सो कंट्रास्ट विथ टेरिडोफाइट्स एंड सीड प्लांट्स वेयर द स्पोरोफाइट्स डोमिनेट्स। क्या होता है, जो टेरिडोफाइट होते हैं और जो सीड प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है ना। नेक्स्ट, एंथीडिया एंड आर्केगोनिया आर फाउंड इन and Antheridia and Archegonia are found in Chlorophyceae, Angiosperms, Bryophytes, Gymnosperms. जो एंथीडिया है और आर्केगोनिया है वो किस में से पाया जाता है, तो एंथीडिया इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्केगोनिया इज फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड दीज आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। आंसर इज ब्रायोफाइट्स। These structures are not found in seed plants. जो ये एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। द डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट इज गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जाइगोट, एम्ब्रियो। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि टेरिडोफाइट और सीडिंग प्लांट्स में जो डोमिनेंट होता है वो स्पोरोफाइट होता है ना। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक। और इसमें गैमेटोफाइट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और समटाइम्स हार्ट शेप्ड होता है गैमेटोफाइट। ठीक है। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं दे मार्क द शिफ्ट टू स्पोरोफाइट डोमिनेंस। ये जो फेज आ जाता है टेरिडोफाइट्स का, इसके बाद से जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंस शुरू हो जाता है, यहीं से इनफैक्ट स्पोरोफाइट डोमिनेंस शुरू हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ वस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट? इनमें से किस वस्कुलर टिश्यू किसके पास नहीं होता, एब्सेंट होता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। वस्कुलर टिश्यू एज इफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये किसके पास नहीं होता है? आंसर इज ब्रायोफाइट्स, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड इन हायर प्लांट्स, दे लैक इन ब्रायोफाइट्स। सो ब्रायोफाइट्स आर non-vascular non-vascular plants. Next, double fertilization is a characteristic feature of bryophytes, pteridophytes, angiosperms, gymnosperms. Double fertilization is a characteristic feature of.
So answer is angiosperm. This is the unique ability of angiosperm to perform double fertilization, है ना? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये दो चीजें होती हैं. वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग, ये हो गया सिनगैमी. और जो दूसरा होता है मेल गैमेट, वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है. इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. नेक्स्ट, which algae are predominantly found in fresh water? Rhodophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae, all equally. Which algae are predominantly found in fresh water? So answer is Chlorophyceae. Chlorophyceae is also known as green algae. ठीक है. They are predominantly found in freshwater habitats like ponds and lakes. इनके पास क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसको एज फूड ये स्टोर करते हैं, और इनका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है. ऑलराइट. सो क्लोरोफाइसी, like green algae, they dominate the freshwater ecosystem. The characteristic pigment of brown algae is, brown algae का characteristic pigment कौन सा है? brown algae जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? Phaeophyceae. brown algae को हम लोग और क्या कहते हैं? Phaeophyceae. इनके पास क्या होता है? Fucoxanthin. Fucoxanthin is the pigment which gives them their characteristic olive brown color. Olive brown color in brown algae, which are also called Phaeophyceae, is provided by fucoxanthin. है ना? नेक्स्ट, राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राइजोइड किसमें होते हैं. एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में से राइजोइड किसके पास होते हैं? राइजोइड होते क्या है? दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. इनका काम क्या है? इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन और एंकरेज. ये दोनों काम करते हैं rhizoids, and they are found in bryophytes. These are root like structures, but they are not actually roots. हाँ, जो ट्रू रूट्स होते हैं वो वस्कुलर होते हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलते. उनके पास क्या होते हैं? these root like structures which are called rhizoids. Sporophyte is totally dependent on gametophyte N. Sporophyte is totally dependent on gametophyte N. Mosses, liverworts, ferns, gymnosperms. Sporophyte is totally dependent on gametophyte in liverworts. है ना? इसमें क्या है, ये न्यूट्रिशन के लिए थ्रू आउट लाइफ जो स्पोरोफाइट होते हैं ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहते हैं. नेक्स्ट, which plant shows Haplo-diplontic life cycle? Markantia, Funaria, Polysyphonia, Ectocarpus. तो इसका आंसर है एक्टोकार्पस. यहां पे क्या होता है, दोनों गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये दोनों फ्री लिविंग होते हैं और सिमिलर मॉर्फोलॉजी के होते हैं. और ये टिपिकली किस में मिलता है हमको देखने के लिए? ब्राउन एल्गी में.
ये ब्राउन एल्गी में हम लोग को देखने को मिलता है. So it is the answer. Next, pollen grains in gymnosperms developed in microsporangia, megasporangia, ovary, archegonium. तो इसका आंसर है माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होता है ना. पोलन ग्रेन जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होता है. और ये कहां पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहां लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड ऑन माइक्रोस्पोरोफाइलस. Pollen grain is developed inside microsporangia, which is located on microsporophyllus. ठीक है. Next, which one is seedless and vascular? Bryophyte, Pteridophyte, Gymnosperm, Angiosperm. Sorry. So, which one is seedless and vascular? Bryophyte, Pteridophyte, Gymnosperm or Angiosperm? Answer is Pteridophyte. देखिए टेरिडोफाइट जो होते हैं दे आर द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स. दे आर फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स. लेकिन ये क्या करते हैं, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते. दे डोंट प्रोड्यूस सीड्स. इसलिए इनको हम लोग कहते हैं वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. Okay. Next, which among these shows the triphasic life cycle? Fucus, Polysiphonia, Pterocarpus, Chlamydomonas. तो जो ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल है इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट, उसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट. टेट्रास्पोरोफाइट ये होता है ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल. और इट इज शोन इन पॉलीसाइफोनिया विच इज अ रेड एल्गी. ठीक है. जो ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल है ये पॉलीसाइफोनिया में देखा जाता है, जो कि एक रेड एल्गी होता है. ये रेड एल्गीज का एक यूनिक फीचर है ना. इसका यूनिक फीचर है जिसमें पॉलीसाइफोनिया 3 डिस्टिंक्ट फेजेस दिखाता है, गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट. नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड ए on megasporophiles, B in ovaries, C in fruit or D inside receptacle. तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है ये डायरेक्टली मेगास्पोरोफाइलस पे डेवलप होता है. आंसर इज ए ऑन मेगास्पोरोफाइलस. जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो है वो डायरेक्टली बॉर्न होता है किस पे, मेगास्पोरोफाइल्स पे. एंड दिस इज एक्सपोज्ड. ये किसी ओवरी में इनक्लोज नहीं है, ये मेगा स्पोरोफाइलस पे डायरेक्टली बोर्न होता है और इट इज एक्सपोज्ड. इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट्स. नेकेड सीड प्लांट्स. ठीक है. इनके ओव्यूल्स जो है जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं ये छिपे नहीं होते हैं. नेक्स्ट, द फर्स्ट terrestrial plants are algae, pteridophytes, gymnosperms, bryophytes.
because of their ability to retain water and reproduce in moist condition, bryophytes were the first plants which colonized land. ठीक है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए और दे वर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज ऑन द लैंड. क्यों? क्योंकि उनके पास एबिलिटी थी वाटर रिटेन करने के लिए और मॉइस्ट कंडीशन में रिप्रोड्यूस करने के लिए. आंसर इज ब्रायोफाइट्स. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स आर. प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन से हैं? एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स? So answer is bryophytes. They are often termed as amphibians of the plant kingdom. क्यों? क्योंकि वो लैंड पर तो रहते हैं बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना? स्पर्म नीड वाटर टू रीच द एग. Thus the bryophyte depend on moist environment. Answer is bryophytes. Sporophiles are specialized for photosynthesis, reproduction, root absorption, transpiration. जो स्पोरोफाइल्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड लीव्स. ये स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं. इनके पास क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है. ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. स्पोर्स आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. ठीक है, ये चीज हम लोग को कहां देखने को मिलता है? ये प्रीडोमिनेंटली टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में हम लोग को देखने को मिलता है. सो आंसर इज रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, सीड्स आर एब्सेंट इन ऑल एक्सेप्ट. इनमें से सीड सब में एब्सेंट हैं एक्सेप्ट टेरिडोफाइट्स, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स. तो जो सीड्स होते हैं ना वो सिर्फ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स इनमें देखने को मिलते हैं. आंसर इज जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? दीज आर सीडेड या सीड बियरिंग प्लांट्स बट दे डोंट फ्लावर. दे आर ऑल्सो नॉन फ्लावरिंग. Next, in which plant body the zygote develops inside the female body? Chlorophyceae, Rhodophyceae, Phaeophyceae या Bryophytes? आंसर इज ब्रायोफाइट. देखिए इसमें क्या होता है, जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको कहते हैं हम लोग आर्केगोनियम. आर्केगोनियम. तो जो जाइगोट होता है ये आर्केगोनियम के अंदर ही रिटेन रहता है और वहीं पे ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है ना? ये मेजर इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है. आंसर इज ब्रायोफाइट्स. नेक्स्ट, which division is called vascular cryptogams? Gymnosperms, pteridophytes, bryophytes, algae. Which division is called vascular cryptogams? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. आंसर इज pteridophytes. तो ये क्या होता है? इनके पास जाइलम और फ्लोएम सब कुछ होता है बट दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. दे डोंट हैव सीड्स. एग्जाम्पल आर फर्न्स. और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? हॉर्स टेल्स. ठीक है, they are first pteridophytes are the first vascular plants. They have xylem and phloem. Next, which pigment which pigment is found in red algae but not in green algae? इनमें से कौन सा पिगमेंट है जो कि रेड एल्गी में मिलता है लेकिन ग्रीन एल्गी में नहीं मिलता? फाइकोसाइनिन, ज़ैंथोफिल,
फाइको एरिथ्रिन क्लोरोफिल ए। आंसर इज फाइको एरिथ्रिन। ये सिर्फ रोडोफाइसी में पाया जाता है, यानी रेड एल्गीज में पाया जाता है, और उनको उनका कलर मिलता है उससे। दे आर नॉट प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी। इट इज यूनिक टू रेड एल्गीज। नेक्स्ट, which plant group includes marine multicellular algae with chlorophyll A and B? Phaeophyceae, Rhodophyceae, Chlorophyceae या euglenoids? Which plant group includes marine multicellular algae? आंसर इज क्लोरोफाइसी। देखिए, जो ग्रीन एल्गी होता है, इट इज मल्टी सेल्यूलर। इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है। मोस्टली ये फ्रेश वाटर हैबिटाट में मिलता है ना। आंसर इसका हो गया क्लोरोफाइसी। इसका एक एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल और दे देते हैं, एलोथ्रिक्स। नेक्स्ट, which of the following is not vascular? Gymnosperms, pteridophytes, bryophytes, angiosperms? Which of the following is not vascular? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ब्रायोफाइट्स आर नॉट वस्कुलर, दे डोंट हैव एनी जाइलम और फ्लोएम, है ना। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स, दे ऑल आर वस्कुलर, एंड ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर। नेक्स्ट, which algae stores food as mannitol or laminarin? Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae या साइनोबैक्टीरिया? कौन सा एल्गी है जो फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल और लैमिनारिन? आंसर इज फियोफाइसी। जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो अपने फूड को इसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, मैनिटॉल और लैमिनारिन के फॉर्म में, है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्च फूड जो कि ग्रीन एल्गी में बनता है। नेक्स्ट, which plant group shows first true alternation of generation? Which plant group shows first true alternation of generation? Bryophytes, algae, pteridophytes, gymnosperms? Answer is bryophytes. Bryophytes were the first to show true alternation of generation. इनके पास क्या था? एक डोमिनेंट गैमेटोफाइट था और एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइट था, है ना। इसीलिए इनका जो ये फीचर है, इनको एल्गी से डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट, which of these produce motile spores? Gymnosperms, pteridophytes, angiosperms, rhodophyceae? Answer is pteridophytes. Pteridophytes are those which produce motile spores, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Zoospores. टेरिडोफाइट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें ये काम आते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। नेक्स्ट, which is the most advanced group among cryptogams? Bryophytes, pteridophytes, fungi, algae? तो अभी क्रिप्टोगैम्स हमने बताया था, दे डोंट हैव देयर सीड्स। टेरिडोफाइट्स जो हैं,
दिस इज द आंसर। क्रिप्टोगैम में जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर मोस्ट एडवांस्ड। इनके पास वस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। इनके पास डिस्टिंक्ट रूट, स्टेम और लीफ सब कुछ देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप अमंग क्रिप्टोगैम्स। Which is a monoecious gymnosperm? Cycas, Pinus, Ginkgo, Neetum. Answer is Pinus. जो पाइनस होता है ये मोनोइशियस जिम्नोस्पर्म है। इसके पास दोनों मेल और फीमेल कोन दोनों होता है सेम प्लांट पे। मेल एंड फीमेल कोन ऑन सेम प्लांट। जो साइकस होता है ये डायसियस होता है। ऑलराइट, which structure protects reproductive organs in gymnosperms? Which structure protects reproductive organs in gymnosperms? Metals, megasporophylls, ovaries, sepals. Which structure protects reproductive organs in gymnosperms? Answer is megasporophylls. देखिए जिम्नोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं दे बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, जो कि जिसमें से मेगास्पोरोफिल जो होता है ये ओव्यूल को प्रोटेक्ट करेगा और माइक्रोस्पोरोफिल ये पॉलन सैक को प्रोटेक्ट करता है। वहां पे कोई ट्रू फ्लावर या ट्रू ओवरी देखने को नहीं मिलती है। सो मेगा स्पोरोफिल्स विल प्रोटेक्ट ओवरी और जो माइक्रो होता है वो पॉलन सैक को प्रोटेक्ट करता है। लाइफ साइकिल विथ नो फ्री लिविंग डिप्लॉयड फेज इज life cycle with no free living diploid phases: diplontic, haplontic, haplodiplontic या triphasic। देखिए जो डिप्लॉयड फेज होता है जैगोट वाला फेज ये क्या होता है? फ्री लिविंग डिप्लॉयड फेज होता है। सो लाइफ साइकिल विथ नो फ्री लिविंग डिप्लॉयड फेज इज नोन एज हैप्लॉन्टिक। ओके, नेक्स्ट, Rhodophyceae differs from others in lacking chlorophyll, possessing only one flagella, non-motile reproductive stages, being unicellular। जो रोडोफाइसी होते हैं ये दूसरों से डिफर कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। जो रेड एल्गी होता है रोडोफाइसी इसमें ऑल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नॉन मोटाइल्स, चाहे वो गैमीट्स हैं, स्पोर्स हैं, जो भी हैं, दे आर नॉन मोटाइल। दे रिलाई ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जो वाटर करंट्स हैं ये उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वाटर करंट पे ये डिपेंडेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सो वी कैन से दैट absence of mortality in reproductive stages is the key feature of Rhodophyceae, which is red algae. Zygote undergoes meiosis immediately in Pteridophytes, Bryophytes, Haplontic life cycle या Gymnosperms। आंसर इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है कि जाइगोट क्या होता है मियोसिस के इमीडिएटली बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है, उसमें कोई मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्टेज नहीं होता है। सो आंसर इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन एंजियोस्पर्म्स द गैमेटोफाइट इज, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट क्या होता है? फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट एंड लॉन्ग लिव्ड, रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड एंड ऑटोट्रॉफिक। एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है
ये रिड्यूस्ड होता है और इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, है ना। इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, Chlamydomonas reproduces asexually through conjugation, zoospores, isogamy, oogamy. तो क्लमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जूस्पोर्स के थ्रू में, ठीक है। दीज आर मोटाइल स्पोर्स, जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इससे इसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, isogamy with flagellated gametes is found in, isogamy with flagellated gametes is found in Spirogyra, Fucus, Ulothrix, Volvox. फ्लैजिलेटेड गैमी जो है के साथ आइसोगेमी होता है यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। यहां पे दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और दोनों मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट, gamma cups are characteristic of mosses, ferns, marcantia, cycas. तो जो ये स्ट्रक्चर है ना गैमा कप्स, दे आर फाउंड ऑन मार्केंचिया हेली। इसको क्या कहते हैं? मार्केंचिया हेली। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं गैमी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसमें, मार्केंचिया में। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स टू पोजेस सीड्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स टू पोजेस सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये फ्लावरलेस सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। आंसर इज जिम्नोस्पर्म्स। Gymnosperms were the first group of plants to produce seeds, but without enclosing them inside fruit. इनका सीड नेकेड सीड होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के बीच में जो गैप हुआ था उसको फिल किया था जिम्नोस्पर्म्स ने। इनके पास सीड है बट विदाउट अ फ्रूट, विदाउट अ फ्रूट, ठीक है। नेकेड सीड्स होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स? सिलाजिनेला, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सेल्विनिया। Which of the following is a homosporous pteridophyte? तो होमोस्पोरस मीन्स इसमें सिर्फ एक टाइप का ही स्पोर प्रोड्यूस होता है, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज फाउंड इन लाइकोपोडियम, है ना। जो सेलेनिजेला और मार्शियला होता है ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ब्रायोफाइट्स? जूस्पोर, वाटर मीडिएटेड, पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। Which type of fertilization occurs in bryophytes? So answer is bryophyte में क्या होता है? ये वाटर मीडिएटेड होता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स, ये वाटर में स्विम करके एग तक पहुंचते हैं। सो इट इज ऑलवेज वाटर मीडिएटेड। Rhizoids in bryophytes are primarily meant for photosynthesis, anchorage and absorption, nitrogen fixation, transport. तो जो राइजॉइड होते हैं ये फॉल्स रूट्स होती हैं। ये क्या है? फॉल्स रूट्स होते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बट दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, सो
इट इज नोन एज राइजोइड, और इसका काम होता है एंकरेज और एब्जॉर्प्शन का। Which among these lacks a cuticle layer? इनमें से क्यूटिकल लेयर किसके पास नहीं है? एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। सो आंसर इज ब्रायोफाइट्स। इनके पास क्या है? क्यूटिकल लेयर नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं? ये मॉइस्ट एनवायरमेंट को प्रेफर करते हैं कि इनका वाटर लॉस ना हो, है ना। नेक्स्ट, इन विच एल्गी डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व oogammy? क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। आंसर इज फ्यूकस, जिसको हम लोग कहते हैं इट इज अ ब्राउन एल्गी। यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. The plant group that never produces seeds is gymnosperm, pteridophytes, angiosperms, cycads. तो आंसर इसका हो जाता है टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉट सीड्स। टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, दे डोंट हैव सीड्स। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं इनके पास सीड होता है, और टेरिडोफाइट के पास दीज आर सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। Archegonia are found in all except liverworts, gymnosperms, angiosperms, pteridophytes. आर्केगोनिया जो है ये एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता, इनके पास होता है एम्ब्रियो सैक्स। दे हैव एम्ब्रियो सैक्स। ठीक है। In which plant group is the sporophyte independent and photosynthetic? Answer is, in which plant group is the sporophyte independent and photosynthetic? Algae, bryophytes, pteridophytes, fungi. किस प्लांट ग्रुप के पास स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक होता है? आंसर इज टेरिडोफाइट्स। यहां पे क्या है? स्पोरोफाइट जो होता है ये इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट, which life cycle shows dominant independent sporophyte and reduced gametophyte? Which life cycle shows dominant independent sporophyte and reduced gametophyte? डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या ट्राइफेजिक? आंसर इज डिप्लॉन्टिक। इस केस में क्या होता है? स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और गैमेटोफाइट जो होता है वो हाईली रिड्यूस्ड और डिपेंडेंट हो जाता है। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please share it with your friends and subscribe the channel. And if you have stayed till the end, please like the video. Thank you very much.